The journey about Council India, the people who know about Council India, they know that we believe in giving the value, in the value of your time, your energy, and your money, right? So basically, what we are doing here in Council India, we are providing psychological services in two ways. The first one is we if a person is having any kind of problem related to psychology, like if a person is having depression, relationship problems, addiction, anger, and various any disorder, any mental disorder, so we have the top psychologists of India at Council India's panel. They can take counseling services directly from Council India. And the second is the training. We have designed some training programs so that we can stop generating these problems on a mutual level. Exactly. So these training programs, like one of our program named Counseling Masterclass, which is really top selling program of Council India. Then we have great programs for the people who are becoming psychologists nowadays. Right. There's a lack of practical exposure. I mean, students always do complain about the practicality of the psychology, because this is, psychology is the subject where you need to deal with the emotions, with the thoughts of the person. This is quite practical, right? It only happens when you interact with the people. So that's why we have some practical training programs or internship programs for the people who are studying psychology nowadays. And the beautiful thing is that we also have some updated programs of psychology for the people who are expert of psychology, who are studying psychology, because learning is, ongoing. Learning never ends. True. Okay, that's great. It's really a overwhelmed journey that you have discussed with us, and we are really excited for the product that you'll be launching very soon about managers. So moving forward with this interview or this interaction, we can say, I just want to understand, or maybe our audience want to understand, that what is the meaning of self? Like we talk about I, like what is I if I talk about me? So what is self? So would you like to throw some light on that? Like what is self? Okay, perfect. So if you'll ask to a scientist, okay, what is self? They'll talk about the energy in the end, right? There are a lot of people, if you ask to a common man, the general profession, maybe they can say that, oh, this is me, my thoughts are me, or my emotions are me, जो मैं सोचता हूँ वही मैं हूँ, ऐसे आंसर्स मिल सकते हैं. अगर आप पूछेंगे किसी स्पिरिचुअल पर्सन से, तो वो आपको कह सकते हैं कि मैं एक सोल हूँ, राइट, मैं एक स्पिरिट हूँ. तो इस तरीके के आपको आंसर्स मिलेंगे. लेकिन हम इसको एक अलग ही तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं. एवरी टाइम वी आर एक्सपीरियंसिंग, राइट. जब हम कहते हैं कि हम जान रहे हैं चीजों को, राइट, दो तरीके हैं दुनिया में जानने के. एक तो ये है कि भाई मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन है और मैं इन्फॉर्मेशन आपको पास कर दूं, और वो इन्फॉर्मेशन आपने ले ली है, तो आपके पास ना इन्फॉर्मेशन है, राइट, आपके पास उसका एक्सपीरियंस नहीं है. अगर आप किसी चीज को एक्सपीरियंस कर पाते हैं तो हम कहते हैं कि आपने उसको जाना है, राइट. वो जो एक्सपीरियंस है ना, वही लाइफ है. और उस एक्सपीरियंस को जो महसूस करता है, या जो जिसका वो एक्सपीरियंस होता है, वो सेल्फ है बेसिकली, राइट. चाहे हम एनर्जी का नाम दें, चाहे सोल का नाम दें, हम कोई भी नाम हम दे सकते हैं. बाकी जब हम बात करते हैं थॉट्स की, हम इमोशंस की बात करते हैं, बॉडी की बात करते हैं, दीज आर द टूल्स टू एक्सपीरियंस द लाइफ. टूल्स फॉर द लाइफ बेसिकली वी कैन से, बिकॉज़ द एक्सपीरियंस इज लाइफ. जैसे हम टूल्स की बात कर रहे हैं, जैसे हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, आपने कहा, तो इसको अगर और थोड़ा हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में जानना चाहें, जैसे टूल्स की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो मतलब कैसे मैं अपने आप को सेटिस्फाई करूं, या कैसे मैं अपने आप को समझा पाऊं. सी टेक्निकली वी टॉक अबाउट दोस टर्म्स इज इट्स गुड, like tools and energy and this thing, but how we can understand this word in a very simplified way, like बहुत सिंपल तरीके से मैं कैसे जान सकता हूं इसको. ठीक है भाई, आप देखिए, आप सोचिए, बहुत सारे लोग हैं, एक बहुत सिंपल तरीका अप्लाई करते हैं अपने आप को जानने का,
कि पॉइंट आउट वेयर आर यू राइट नाउ, राइट? अगर मैं पॉइंट आउट करता हूँ यहाँ पे, तो मैं कहूँगा नो आई एम नॉट दिस इज माई हैंड, राइट? अगर मैं पॉइंट आउट करूँगा कि इसको, तो मैं कहूँगा ये मेरा फोरहेड है, दिस इज नॉट मी, ये मैं नहीं हूँ, राइट? तो ऐसे ही मैं पॉइंट आउट करता जाऊँगा, तो मुझे पता चलेगा कि यार ये सब मेरा है जिसे मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। जो मैं हूँ उसे तो मैं पॉइंट आउट कर ही नहीं सकता हूँ, राइट? अब ये जो मैं और मेरा वाली चीज़ें हैं, बाहर की दुनिया में अगर हम देखेंगे, तो अगर मेरे पास मोबाइल है तो वो मेरा मोबाइल है, मेरा इज समथिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम मी, राइट? जो मेरा है वो टूल हो सकता है, वो मैं नहीं हो सकता हूँ। तो जो मैं टूल की बात कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसको हम मेरा कह सकते हैं। जैसे हम अपनी बॉडी को मेरा कहते हैं, माई बॉडी, तो माई बॉडी इज माई टूल, राइट? माई थॉट्स, माई इमोशंस, सो दीज आर द टूल्स। ये टूल्स हैं, किस चीज के लिए टूल है? टूल है लाइफ को जीने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए ये टूल्स हैं, राइट? तो सिंप्लीफाइड वे में ऐसे हम इस चीज को समझ सकते हैं। ओके ओके, ग्रेट। सो और कुछ मतलब सेल्फ को अगर हम समझें, जैसे कि काफी चीजें तो क्लियर हुई हैं, बट और कोई अच्छा, कोई एक और, अगर हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की बात करें, जैसे आपने और अलग अलग डायमेंशन की बात करी, साइंटिस्ट की बात करी, तो कोई एक एग्जांपल और देना चाहेंगे सोसाइटी के किसी एक कोई डोमेन का, जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा ही इन्वॉल्व हो अपने आप को लेके, सेल्फ पोजेस्ड हो या कुछ हो, तो उनके लिए एक हेल्प हो सके टू अंडरस्टैंड दैट कि जो वो समझते हैं अपने बारे में वो एग्जैक्टली वो नहीं है, बट एग्जैक्टली वो क्या है, एक डिफरेंस वो समझ पाए इस चीज में। ठीक है। जनरली जो लोग समझते हैं अपने आप के बारे में, होता क्या है कि शिवम, हम बचपन से बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने आसपास से ले रहे हैं, बहुत सारी चीजों को जान रहे हैं और अपने बिलीफ सिस्टम्स बना रहे हैं, मतलब विश्वास करते हैं। हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं कि ये पेन है, तो हम मानते हैं कि ये पेन है। हमारे टीचर हमें बताते हैं कि ये बोर्ड है, या फिर बुक में जो भी वो हमें बताते हैं हम मानते हैं कि ये वो है। तो धीरे धीरे हम एक बड़ा बिलीफ सिस्टम जनरेट करते हैं। इसी तरीके से हम साइकिल चलाते हुए गिर जाते हैं तो हमें दुख का एक्सपीरियंस होता है, तो आगे से हम ध्यान रखते हैं हम लेना। इस तरीके से बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स हमने अपने अंदर रखे हुए हैं। और कई बार होता क्या है कि अगर मैं साइकोलॉजिकली बात करूं, तो जब हम सेल्फ की बात करते हैं सोसाइटी में, तो आपका वो जो बंडल है बिलीफ सिस्टम्स का, वो आप हैं, राइट? साइकोलॉजिकली वो आप हैं, जो आपका बंडल है। चाहे हम कहते हैं कि ये इनका स्वभाव ऐसा है, स्वभाव की मैं बात कर रहा हूँ, या पर्सनैलिटी ऐसी है, पर्सनैलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, राइट? तो उस बंडल को हम कहते हैं कि हम सेल्फ है। अब इसके लिए मैं एक छोटी सी आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा, ठीक है? पहले क्या होता कि ऊंट होते थे लोगों के पास, तो एक स्टोरी है कि कुछ लोग ऊंट को लेके जा रहे थे, बहुत सारे ऊंट थे उनके पास, वो लेके जा रहे थे, तो रात बहुत हो गई, तो उन्होंने ऊंटों को बांधना चाहा कि हम ही रुक जाते हैं। पास में एक छोटा सा घर भी था किसी का, उनसे वो पर्सन जो ऊंटों को लेके आए थे उनमें से एक गया और पूछा कि हम यहाँ पे रुकना चाहते हैं और हम हमारे जो ऊंट हैं हम यहीं इनको बांधना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मान लो अगर 60 ऊंट हैं उनके पास, तो 60 ही उनके पास कुछ ना खुंटियां होती हैं, है ना? खूंटे ऐसे होते हैं जिनसे हम ऊंटों को बांधते हैं। तो उन्होंने ऊंटों को बांधना स्टार्ट किया, लेकिन उसमें 2 खूंटियां कम थी। अब 2 खूंटियां कम थी, मतलब 2 ऊंटों को नहीं बांध सकते हैं, और अंधेरे में हो सकता है ऊंट कहीं चले जाए या कुछ भी हो जाए या कोई ले जाए, कुछ भी हो सकता है। तो वो बड़े परेशान कि अब क्या करें कि 2 खूंटे तो है नहीं, ऊंटों को कैसे बांधे हम। तो वो जो वहां पे पास में जो ऑनर था, जो मालिक था उस मकान का, उसके पास इस समस्या को लेके गए। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे बात है, क्या करें? या तो ये है कि हम सोए ना रात भर, ऊंटों को देखते रहें, बिल्कुल, तो या फिर ऊंट चले जाएंगे अगर हम सो जाएंगे तो वो जो ऑनर था, जो मालिक था, उसने एक सजेशन दिया। उसने कहा कि तुम ऐसा करो, ऊंटों को ना बिना रस्सी के बांध दो और बिना खूंटी के खूंटी गाड़ दो तुम। उन्होंने कहा मतलब हम समझे नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? उनको समझाया कि देखो अंधेर को है,
तुम ऊंटों के गले में एक वर्चुअल रस्सी बांधो, हम्म, ऊंट को पता चलना चाहिए कि उसके रस्सी बांधी जा रही है, और एक वर्चुअल खूंटी ही गाड़ दो, ठीक है, और फिर देखो कि ऊंट रुकता है नहीं। तो वो गए और उन्होंने ऐसे एक वर्चुअल रस्सी ऊंट के गले में बांधी और वर्चुअल खूंटी गाड़ दी, राइट। और कमाल की बात यह है कि ऊंट उसको समझ के और बैठ गया, और उन्होंने उसकी बात पे भरोसा करके वो सो गए। तो सुबह देखा तो ऊंट बैठा हुआ था, कोई खूंटी नहीं थी, कोई रस्सी नहीं थी, राइट। तो उसने उसका धन्यवाद दिया, जो ऑनर था, कि आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया, हम भी सो पाए और हमारे ऊंट भी कहीं नहीं गए। बहुत दिल से उन्होंने धन्यवाद दिया। वो फिर निकल दिए, अपनी जर्नी पे चले गए। तो बाद में चले गए तो वो जो 2 ऊंट थे वो खड़े नहीं, वो नहीं जाना चाह रहे थे। अच्छा। अब वहां पे कोई रस्सी नहीं है, कोई खूंटी नहीं है, वो जा ही नहीं रहे हैं ऊंट, वो चल ही नहीं रहे हैं। वो बड़े परेशान कि उठ क्यों नहीं रहे हैं ऊंट, चल क्यों नहीं रहे हमारे साथ। वो फिर से उसी ऑनर के पास गए। उसने कहा कि यार ये क्या जादू हो गया, रात में हमने तो रस्सी बांधी थी लेकिन रस्सी है भी नहीं और ऊंट चल भी नहीं रहे हैं। तो वो जो ऑनर है उसने कहा कि आप ऐसा करो, जो आपने खूंटी गाड़ी थी और जो रस्सी बांधी थी उसे खोल दो। वो कहते हैं कि लेकिन हमने तो कुछ बांधी नहीं थी, कोई रस्सी नहीं थी, कुछ नहीं था वहां। उसने कहा कि जैसे आपने गाड़ी थी, जैसे उसके गले में रस्सी बांधी थी, ऐसे ही खोल दो। उन्होंने ऐसा ही किया तो ऊंट खड़े हो गए और उनके साथ चल दिए। तो आज ना हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है कि हमारे खुद के ही थॉट्स हैं, हमें एक कैटेगरी में रखे हुए हैं, हमें अच्छा या बुरा बनाए हुए हैं, या हमारी सेल्फ की डेफिनेशन समाज में दिए हुए हैं। कह देते हैं ना कि ये आदमी तो बहुत अच्छा है, ये आदमी तो बहुत सज्जन है, ये बहुत अच्छे इंसान है। तो किस बेस पर हम कह रहे हैं? हम कह रहे हैं उन थॉट्स के बेस पे, उन बिलीफ सिस्टम्स के बेस पे, राइट। तो ये भी एक एग्जांपल है कि हम अपने आप को क्या समझते हैं, हम कैसे डिसीजंस लेते हैं। और यही चीज कई बार हमें, हमारे ही विचार जो हैं हमें बांधे रखते हैं। एक वर्चुअल रस्सी है, बांधे रखते हैं, हम आगे भी नहीं जा पाते हैं कई बार, राइट। तो ऐसी बहुत सारी खूंटी, जैसे मैं आपको कहूँ यूथ में आजकल ऐसा है, या फिर जो नई जनरेशन के बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा ड्रग्स में या फिर स्मोकिंग या अलग अलग तरीके के नशे करते हैं, या फिर ऐसा नहीं उनके पास एनर्जी नहीं है, उनके पास काम करने का जज्बा नहीं है, लेकिन उनके ना थॉट्स ऐसे हो गए हैं, उनके ना बिलीफ्स ऐसे बन गए अपने आप को लेके, जो उनको खुद ही रोके हुए हैं। या ये कहूँ कि उनकी सेल्फ की जो डेफिनेशन है ना, वो कहीं खो गई, या फिर वो ऐसी बन गई है जिससे वो अपने आप को बाहर नहीं लेके जा रहे हैं। Okay. तो ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि सेल्फ आपके सिर्फ थॉट्स ही नहीं है, राइट। आप थॉट्स को बदल सकते हैं। सेल्फ आपकी बॉडी भी नहीं है, राइट। सेल्फ वो एनर्जी है जो एक्सपीरियंस कर रही है, या जो देख रही है, आंखों से जो देख रही है, वो आप है, राइट। आंखें नहीं है आप, या आंखें नहीं देखती हैं, शरीर नहीं चलता है, राइट। शरीर के थ्रू आप चलते हैं। तो वो जो आप है, वो जो इनविजिबल है, जिसको पॉइंट आउट नहीं किया जा सकता है, वो एनर्जी आप है। तो ये सेल्फ है। थोड़ा अगर मैं एक्सप्लेन कर पाया तो। नहीं, बिल्कुल काफी हद तक कनेक्ट कर पाया मैं इस चीज को। एक स्टोरी आपने जो सुनाई वो काफी हेल्पफुल थी। सो मिस्टर बॉबी, we'll move on for our next question, and that is equally interesting and important as was the earlier one. So in the same way, like we talk about self, in the same way there is another word called as happiness. Because as far as I have seen people, they keep looking for happiness here and there, north, east, west, south. There are a lot of people searching happiness all around the world, but somehow they're not finding happiness inside themselves. They're not creating happiness rather than expecting happiness. So I want to know from you that what is happiness? Happiness क्या है? ठीक है, हैप्पीनेस पे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, जब हम सेल्फ की बात कर रहे हैं तो देयर आर लॉट ऑफ कंपोनेंट्स, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी नीड टू टॉक अबाउट द सेल्फ, राइट। सेल्फ में हम एक्सपीरियंस की बात भी कर रहे हैं। तो हम हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करते हैं, हम 2 तरीके के इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं। पहला तरीके के इमोशंस जो बहुत सुखद इमोशन है, जो बहुत अच्छे इमोशंस हैं, जैसे हैप्पीनेस। हैप्पीनेस हम हमेशा हैप्पीनेस चाहते हैं, जैसे पीस, लव, ये बहुत अच्छे इमोशंस हैं, अच्छे
हम चाहते हैं इनको बार बार आना। कुछ ऐसे इमोशन है जैसे सैडनेस, राइट, हेट्रेड, या फिर आपको एंगर, ये वाले जो इमोशंस हैं, जब हम सेल्फ की बात करते हैं तो दैट्स हाउ वी आर लिविंग लाइफ। हम अलग अलग इमोशंस क्रिएट कर रहे हैं जिंदगी में। इस सेल्फ के कंपोनेंट हम इनको कह सकते हैं, या ऐसे हम सेल्फ को एक्सप्रेस करते हैं अलग अलग इमोशंस की फॉर्म। तो उनमें से ये जो एक कंपोनेंट है सेल्फ, अब देखो हम सेल्फ एनालिसिस भी कर रहे हैं, इनमें से जो एक कंपोनेंट है वो है हैप्पीनेस, राइट। अब हैप्पीनेस डायरेक्टली सेल्फ से जुड़ा हुआ है। तुम दुनिया में किसी को भी पूछो व्हाट डू यू वांट, आई वांट टू बी हैप्पी, व्हाई यू आर अर्निंग मनी, so that I can be happy, so that my family can be happy, why are you completing this task, why are you doing this thing, so that I can be happy, right? तो ये एक अल्टीमेट आंसर अगर आप पूछेंगे किसी से तो आपको मिलेगा कि आई एम डूइंग दिस फॉर द हैप्पीनेस, राइट। लेकिन जब हमें इसे समझना है, अगर किसी से पूछो कि हैप्पीनेस क्या है तो लोग अटक जाएंगे। शायद लोगों ने इस लहजे से सोचा ही नहीं है कि हैप्पीनेस क्या होगी। वो सब एक एक्सपीरियंस है, राइट। किसी भी चीज को क्रिएट करने के लिए, रोकने के लिए, अपनी मर्जी से चलाने के लिए हमें उसे जानना बहुत जरूरी है। अगर हम हैप्पीनेस के बारे में नहीं जानते हैं तो इसलिए ना हैप्पीनेस हमें कभी कभी हम हैप्पी होते हैं फिर नहीं होते, तो ये रैंडम हो रहा है। कभी एक्सपीरियंस हो रहा है, कभी एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, राइट। तो जानने का फायदा ये होगा, ये फायदा हो सकता है कि हम हैप्पीनेस क्रिएट कर पाए, जब चाहे तब कर पाए, या जितनी देर तक चाहे उतना हैप्पी हम हो पाए। इसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि हैप्पीनेस क्या है, और हैप्पीनेस को जानने के लिए हमें अपने हैप्पीनेस के एक्सपीरियंसेस को देखना बहुत जरूरी है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लास्ट टाइम कब खुश थे, या जब आप खुश थे, या जब आप खुश होते हैं, तो कौन सी एक ऐसी चीज है जो कॉमन होती है हर बार? कौन सी चीज कॉमन होती है हर बार? कॉमन अगर मैं कहूँ कि ज्यादातर यही कॉमन होता है कि जो मैंने सोचा है, व्हाट आई एक्सपेक्टेड एंड दैट सडनली हैपेंस, सो आई एम हैप्पी। देखो एग्जांपल से समझते हैं। लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस हो रही हैं, बहुत सारे लोगों से हम मिल रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि मान लो किसी ने हमें एक गिफ्ट दिया, राइट, फॉर एग्जांपल किसी ने लैपटॉप हमें दिया, तो उस लैपटॉप के लेके वी आर वेरी हैप्पी, राइट। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने सेम चीज लैपटॉप ही दिया है बट वी आर नॉट हैप्पी। हो सकता है वो लैपटॉप उस ऐसे इंसान ने दिया जिससे हम नहीं चाहते कोई भी गिफ्ट लेना, हो सकता है उस लैपटॉप को तोड़ दे, राइट। इंसिडेंस एक ही है लेकिन क्रिएशन अलग अलग है, राइट। तो हो क्या रहा है, मतलब जब सेम इंसिडेंस है तो हम पहले इंसिडेंस में हैप्पी है, दूसरे इंसिडेंस में हैप्पी नहीं है। तो अंतर क्या हुआ? अंतर ये है कि जो पहला इंसिडेंस है जिसमें हम खुश हो रहे हैं, हमने उसमें जो गिफ्ट है उसे एक्सेप्ट किया है, उसे स्वीकार किया है, ठीक है। और जो दूसरा इंसिडेंस है उसमें हमने उसे स्वीकार नहीं किया, उसे रिजेक्ट किया है, राइट। तो आप देखेंगे जितनी भी बार हम हैप्पी हुए हैं, हम एक्सेप्टेंस मोड में थे। हमने उस सिचुएशन को, उस पर्सन को, उस बात को हमने एक्सेप्ट किया है। तो जब ऐसी इक्वेशंस बनती हैं लाइफ में, ऐसे समीकरण बनते हैं, जब हम किसी चीज को एक्सेप्ट करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम हैप्पी हैं। द मोमेंट वी रिएक्ट, द मोमेंट वी अपोज, हम इसके अपोजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। चाहे हम सैड हो, चाहे एंग्री हो, चाहे और कोई नेगेटिव इमोशन हो, राइट। तो वो एक चीज कॉमन है, वो है एक्सेप्टेंस। हर बार जितनी भी बार हम लाइफ में हैप्पी हुए हैं, हम उस सिचुएशन को 100% हमने एक्सेप्ट किया। ऐसा नहीं कि एक आधा हम एक्सेप्ट किया, आधा नहीं कर रहे, नहीं। अगर आप खुश हैं तो आप 100% एक्सेप्ट करेंगे, अगर आप खुश नहीं है तो आप अपोज कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये हम ये यहाँ से ये कह सकते हैं कि वो एक्सेप्टेंस ही हैप्पीनेस है। तो वो एक्सेप्टेंस है हमारी अभी कंडीशनल है, लोगों के हिसाब से है, या जो जैसा हमने सोचा वैसा होता है तो हम स्वीकार कर लेते हैं और खुश हो जाते हैं। जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ तो हम अपोज करना स्टार्ट कर देते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि एक्सेप्टेंस ही हैप्पीनेस है। अब देखो इसको जानने से फायदा क्या होगा
इसको जानने का सबसे बड़ा फायदा ये है, जब आप जानते हैं कि एक्सेप्टेंस ही हैप्पीनेस है, तो आप डेलिबरेटली, आप कॉन्शियसली एक्सेप्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, राइट? या एक्सेप्ट वो कैसे होगा उसमें दिमाग लगा सकते हैं, उसके लॉजिक्स ढूंढ सकते हैं। तो जैसे ही आप किसी को एक्सेप्ट करने में कामयाब हो जाते हैं, ओह, एट दैट मोमेंट यू आर हैप्पी। बिल्कुल ऐसे। दिस इज हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू जो मी। अचीव करना चाह रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि जब हम जो अचीव करना चाहते हैं वो हमें मिल गया तो हम हैप्पी हैं, और नहीं मिल गया तो सैड हैं। यही आप कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो स्वीकार करना है ना, वही खुशी है, वही हैप्पीनेस है। मतलब ये कॉमन फैक्टर है। खुशी, जितनी भी बार हम खुश हुए हैं, हम उस मोमेंट को, उन लोगों को हमने स्वीकार किया है, वो जैसा भी है हमने स्वीकार किया। अगर हमने स्वीकार नहीं किया है तो आप देखेंगे कि आप हैप्पी हो ही नहीं सकते हैं, आप खुश हो ही नहीं सकते हैं, राइट? लेकिन ये जो एक्सेप्टेंस है ये कंडीशनल है शिवम, मैं ये बोल रहा हूँ आपसे, ये कंडीशनल है। मतलब इसके लिए हमने अलग अलग कंडीशंस लगाए कि अगर मैं ये आईएएस बन जाऊंगा तो ही मैं खुश हो जाऊंगा, अगर मैं ये बुक पढ़ लूंगा तो खुश हो जाऊंगा, मैं ये जॉब ले लूंगा, अगर मैं 10 लाख रुपए महीना कमाऊंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। मतलब 10 लाख अगर महीने में मैं कमाऊंगा तो मैं 10 लाख को एक्सेप्ट करूंगा, राइट? तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो जैसा हम चाहते हैं ऐसा ही अगर हमें मिल जाता है तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, खुश भी हो जाते हैं। तो कहीं ना नहीं मिला तो कहीं नहीं कह खुश सकते होते हैं तो कि हमने खुशियों के बैरियर सेट किए हुए हैं, कि एक बैरियर बनाया हुआ है, ये मिल गया तो खुश, नहीं तो नहीं खुश। एग्जैक्टली, ये हमारे खुद के माइंड की ही प्रोग्रामिंग है शिवम। ये हमने अपने दिमाग में ही वो बैरियर सेट करे हुए हैं, वो इक्वेशंस बनाई हुई हैं कि ये होगा तो आई एम हैप्पी, ये नहीं होगा तो आई एम नॉट हैप्पी, सिंपल। बिल्कुल। बल्कि एक्सेप्टेंस जहां जहां है वहां हैप्पीनेस है। आप देखिए, आप डेलिबरेटली, मैं कहता हूं कि आप ये एक्सपेरिमेंट खुद अपने साथ कर सकते हैं। 1 हफ्ते के लिए आप देखिए कि जितनी भी सिचुएशंस आपके आसपास आ रही हैं, आप अपने आप पे सेल्फ अवेयर रहें कि जो भी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपको गुस्सा आता है जनरली, उसी सिचुएशन में उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें 100%। अच्छा, कमाल की बात क्या है ना शिवम, हम सिचुएशन को ना एक्सेप्ट ही कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है। लास्ट में हमें उसे एक्सेप्ट ही करना है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर मैं कोई चीज ऊपर उछालता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार ये ऊपर नहीं जानी चाहिए, ये गलत है, ये ऊपर जाना गलत है। अगर मैं इसका अपोज कर रहा हूँ तो मैं हो सकता हूँ 10 दिन अपोज करूंगा, 20 दिन अपोज करूंगा, राइट? क्योंकि जो चीजें हैं वो है ऑलरेडी। लास्ट में हमें उनको एक्सेप्ट ही करना है। या तो तुम आज एक्सेप्ट कर लो, या तुम 10 दिन बाद या 10 साल बाद एक्सेप्ट करोगे, राइट? एक्सेप्ट करोगे तो एक दूसरा इमोशन, हैप्पीनेस वाला इमोशन एक्सपीरियंस करने के नजदीक पहुंच जाओगे, एक्सपीरियंस कर पाओगे। अपोज करोगे तो तुम नेगेटिव इमोशंस एक्सप्रेस करते जाओगे, राइट? तो हैप्पी होने का एक इंस्टेंट फॉर्मूला भी है, अगर तुम्हें इफ यू नो हाउ टू एक्सेप्ट थिंग्स। अब ये भी बात है, लोग कहेंगे कि भाई एक्सेप्टेंस पावर होनी चाहिए। कई बार लोग समझते भी नहीं है कि वो कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं किसी भी चीज को, है ना? देखो, उनको लॉजिक ही नहीं मिलता एक्सेप्ट करने की। भाई मैं तो कहता हूँ कि तुम एक्सेप्ट करने के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते, तुम्हें लास्ट में एक्सेप्ट ही करना है, क्योंकि जो चीजें हैं वो हैं। बिल्कुल। अगर तुम अपोज करते जाओगे तो वो जो चीज है वो बदलेगी नहीं। बिल्कुल। जो इंसिडेंस हो चुका है, जो चीज हो चुकी है वो हो चुकी है। सो द फाइनल वे इज टू एक्सेप्ट द थिंग। तुम अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को बेटर बना रहे हो, तो हैप्पीनेस से दूर जा रहे हो। तो हैप्पीनेस आपके पास है, यू कैन क्रिएट हैप्पीनेस बाय एक्सेप्टिंग थिंग्स। तो ये हैप्पीनेस है मेरे हिसाब से। तो बाबा जी, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जैसे कि 2 चीजें हमने बहुत अच्छे से समझी हैं कि सेल्फ क्या है, हैप्पीनेस क्या है। तो इसी से मिलता जुलता मे भी ये आपकी लैंग्वेज में एक और टूर हो सकता है, हम कह सकते हैं इसे, दैट व्हाट इज लव। ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है आज की इस टाइम पे, बिकॉज जहाँ पे इतने सारे रिलेशनशिप ब्रेकिंग के इश्यूज हैं, डाइवोर्स के इश्यूज बहुत सारे हैं समाज में, एंड देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज रिलेटिंग लव, दैट पीपल डोंट नो व्हाट इज लव। ओके, सो थोड़ा जानना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज लव अकॉर्डिंग टू यू।
देखो जिन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, जैसे हैप्पीनेस की हमने बात करी, हम लव की बात कर रहे हैं, ये हम सबके एक्सपीरियंस में है, ठीक है। अब बस इनको जानने से होगा क्या कि क्या है, कैसे हम एक्सपीरियंस करते हैं, इनको जानने से होगा कि हम इसकी वैलिडिटी बढ़ा सकते हैं या हम इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये पावर ऑफ नोइंग है, इसीलिए शायद हम इसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम लव की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सबने एक्सपीरियंस किया है लव, राइट। चाहे वो जब हम छोटे होते हैं तो हमारी जो मदर हैं या फादर हैं वो हमें प्यार करते हैं, या और हम बड़े होते हैं तो दोस्तों के बीच में प्यार होता है, और बड़े होते हैं तो हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार होता है, और बड़े होते हैं तो प्यार हम हर स्टेज पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये कोई ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है, बस आज हम क्या कर रहे हैं, हम इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो कॉमन क्या है, जब जब हम प्यार के उस एक्सपीरियंस में होते हैं, उस लव की फीलिंग में होते हैं, तो एक चीज कॉमन है कि हमारी का जो एनर्जी का फ्लो है ना, वो इनसाइड आउट होता है, राइट। उस टाइम पे उस फीलिंग में हम भरे हुए हैं, राइट, वी आर फिल्ड। तो होता क्या है, हम उस एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं या तो किसी चीज में या आसपास के लोगों में, ठीक है। आप देखिए, जब हम मदर के लव के बारे में बात करते हैं, एक माँ जब अपने बच्चों को प्यार करती है तो उसे ना उससे कुछ लेना नहीं है, राइट, उसे सिर्फ देना ही देना है। तो वो एक एनर्जी का फ्लो है, कोई जीरो एक्सपेक्टेशन है। जब आप प्यार में हैं तो आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बल्कि आप सामने वाले इंसान को या कोई भी चीज जिससे आप प्यार कर रहे हैं उसको फुलफिल करना चाहते हैं या उसे देना चाहते हैं जो भी आपके पास है, राइट। तो वो जो एनर्जी ऑफ गिविंग है वही लव है, राइट। आप चाहे किसी भी स्टेज में जब भी हम प्यार एक्सपीरियंस कर रहे हैं, किसी भी रिलेशन में हम प्यार एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो ये द एनर्जी ऑफ गिविंग इज कॉमन, राइट। ये जो फुलफिलमेंट हमें जो महसूस होती है जिस टाइम पे हम दे रहे होते हैं लोग या लोगों के लिए कर रहे होते हैं, या वो इमोशन एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, वही लव है। वो स्टेज ही लव की स्टेज, वो एक्सपीरियंस ही लव है। तो इस सिचुएशन में, जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, a lot of young boys and girls who after breakup they are very much depressed or in problem or in trouble. So what can be a advice for them, like if they are in a trouble, if they are in a problem, so what can be one advice you can give them, that this was maybe not love but you can stabilize your emotions, or what can be a solution for to those guys, those who are under trouble after relationship failures or relationship problems, so that they can also understand the real meaning of love and they can balance themselves after breakups, especially if we say. ठीक है, देखो आफ्टर ब्रेकअप क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं कि उस दौरान क्या हो रहा होता है। जब हम रिलेशनशिप में होते हैं या जब नए हम रिलेशन में आते हैं, तो वो प्यार होता है, राइट। वो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, हम करना चाहते हैं, एक दूसरे के लिए करना चाहते हैं, राइट। इनिशियली यही हो रहा होता है एंड वी आर एंजॉयिंग दैट स्टेज। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, कपल या लोगों के बीच में एक्सपेक्टेशंस आनी स्टार्ट हो जाती हैं। जो वो फ्लो है उसमें ब्लॉकेजेस आनी स्टार्ट होती हैं। वो कैसी ब्लॉकेजेस होती हैं? ब्लॉकेजेस ऑफ एक्सपेक्टेशन, राइट। कि जो भी हम कर रहे हैं या जो भी हमने किया है, हम चाहते हैं कि सामने वाला भी करे। द मोमेंट वी थिंक दिस कि सामने वाला भी करे, तो भाई उस टाइम से ना प्यार गायब हो जाता है। उस टाइम पर हम प्यार को तोलना स्टार्ट कर दिया, हमने उसको बेचना स्टार्ट कर दिया, हम ऐसा कह सकते हैं। उसकी वैल्यू लगाना हमने स्टार्ट कर दिया। तो फिर चीजें एक्सपेक्टेशन से ब्रेक होनी स्टार्ट हो जाती है, फिर वो जो फ्लो है लव का वो टूट जाता है। तो एक्सपेक्टेशन आते आते, अब देखो जरूरी नहीं है कि सारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो, राइट। एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती हैं तो आप खुश नहीं होते हैं, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, यू आर नॉट हैप्पी एट दैट टाइम। आप खुश नहीं है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो एनर्जी का फ्लो नहीं है, तो प्यार भी नहीं है उस टाइम पे, है ना। तो फिर ऐसे धीरे धीरे क्या होता है कि उन एक्सपेक्टेशंस के थ्रू कॉम्प्लिकेशंस आनी स्टार्ट हो जाती है रिलेशनशिप में। कॉम्प्लिकेशंस आने से लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं, और लड़ाइयाँ कई बार ब्रेकअप पे खत्म होती हैं।
राइट। वरना आप देखिए ना, देखो प्यार एक ऐसा इमोशन है जो लोगों को जोड़ने का काम करता है, राइट, लोगों को तोड़ने का काम नहीं करता वो। अगर आपका कोई रिलेशन टूट रहा है तो वो प्यार की वजह से नहीं टूट रहा है। आप इसको ध्यान दें कि वो प्यार की वजह से नहीं टूट रहा है, वो आपकी एक्सपेक्टेशन हो सकता है, वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है जिनकी वजह से वो टूट रहा है। या ये कहो कि आपकी जो एनर्जी का जो फ्लो है वो चेंज हो गया, अपोजिट हो गया है, उसकी वजह से टूट रहा है। मतलब आपने देने की बजाय मांगना स्टार्ट कर दिया है कि मेरे लिए ये करो, है ना, मेरे लिए वो करो, या फिर मेरे लिए, मेरे साथ ऐसा बिहेव करो, मेरे साथ ऐसे बात करो, मेरे साथ प्यार से बात करो, राइट। ये क्या है, ये फ्लो ऑफ एनर्जी ना नेगेटिव हो गया। अब हमें एनर्जी चाहिए, तो यहाँ प्यार नहीं है, प्यार के अपोजिट चीजें हो रही हैं। तो जब प्यार नहीं है तो प्यार के अपोजिट है, तो फिर रिलेशन ब्रेक होने के चांसेस है और ब्रेकअप होने के चांसेस है। तो ब्रेकअप के बाद काफी सारी चीजें देखो, पहले तो यही है कि किन सिचुएशंस में हमारा कैसे रिलेशन ब्रेक हुआ है। फिर हमें अपने इमोशन को, बेसिकली हमें करना क्या होता है, हम अपने आप को बैलेंस करना होता है, अपने इमोशंस को बैलेंस करना होता है। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो मैं आपको बता सकता हूँ। साइंटिफिकली देखो हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एटम है, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो एटम से बनी हुई है, राइट। सबसे छोटी इकाई हम किसे कहते हैं, हम कहेंगे एटम, ठीक है। एटम को भी हम और गहराई से देखते हैं तो उसमें 3 चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, राइट। आपने देखा होगा, अगर जो लोग साइंस पढ़ते हैं वो ये समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, राइट, और वो क्या करते हैं, दूसरे एटम के साथ में जुड़कर एक नया कंपाउंड बनाते हैं, और जो प्रोटॉन होता है वो उनको बांधे रखता है। मतलब अपोजिट है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज है। एक चीज जो होती है वो होती है न्यूट्रॉन, लोग उसे इग्नोर करते हैं। अब लाइफ को, इससे हम लाइफ को कनेक्ट कर रहे हैं, इससे हम इमोशंस को कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसे इमोशन जो बहुत प्लेजेंट इमोशन है, हैप्पीनेस वाले इमोशंस हैं, उसे हम पॉजिटिव कह देते हैं, ठीक है। ऐसे इमोशन जो नेगेटिव, उसे इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। तो कई बार तो हम बहुत ज्यादा नेगेटिव इमोशंस में होते हैं तो प्रॉब्लम होने वाली है, कई बार हम बहुत पॉजिटिव इमोशंस में होते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है, राइट। लेकिन हमें करना क्या होता है, हमें बैलेंस करना, हमें न्यूट्रॉन की तरह न्यूट्रल बनना होता है। हमें ना तो बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी में ही रहना है, तो लोग पागल कहते हैं, आपने देखा होगा, जो लोग हंसते रहते हैं, हो सकता है उनको कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, राइट। आम भाषा में उनको मेंटल या पागल बोल देते हैं कि भाई ये तो हंसते ही रहते हैं, एक ही स्टेज में है ज्यादा। या फिर आपने ऐसे भी देखा जो बहुत सैड हैं, बहुत ही डिप्रेस्ड ही हैं, तो वो उस सिचुएशन में भी नहीं रहना चाहते लोग। ना तो हमें उस सिचुएशन में रहना है जो बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसी है जो पॉजिटिव है, जो रियलिटी से बहुत दूर है, ना ही हमें ऐसी इमोशंस में रहना चाहते हैं जो बहुत ही नेगेटिव है, राइट। हम बैलेंस रहना चाहते हैं। और कमाल की बात है कि लाइफ में दोनों ही इमोशंस हैं और दोनों ही जरूरी है। लेकिन हमें जो सीखनी है, जो कला सीखनी है, वो इनको बैलेंस करने की कला सीखनी है। वो न्यूट्रॉन बनना हमें सीखना है, न्यूट्रॉन वाली कला, वो जो पावर है वो सीखनी है। चाहे फिर वो ब्रेकअप के बाद के इमोशंस हमें करने हो, या फिर और कोई सिचुएशन लाइफ में, कोई बड़ा लॉस हुआ हो, जो भी चीजें हैं, जब भी हम इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं तो या तो हम ज्यादा पॉजिटिविटी की तरफ चले जाते हैं या ज्यादा नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं, तो प्रॉब्लम होती है। तो वी नीड टू बैलेंस थिंग्स। तो बैलेंस करने के अलग अलग तरीके होते हैं। बैलेंस करने के लिए अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो आपको किसी काउंसलर की हेल्प लेनी चाहिए जरूर, या आप सेल्फ एनालिसिस, आप अगर जिस भी सिचुएशन में है, आप जिस भी स्टेज पर हैं लाइफ की, अगर आप अभी नॉर्मल हैं, कोई आपको डिसऑर्डर वगैरह कुछ नहीं है, तो आप अपने आप को ना सेल्फ एनालिसिस करते रहें, ध्यान देते रहें चीजों पे। इतना तो एनालिसिस कर ही सकते हैं एटलीस्ट कि भाई हाँ, आपके इमोशंस बैलेंस चल रहे हैं नहीं। अब ऐसा तो नहीं है कि आप नेगेटिविटी में इतने जा रहे हैं कि अब उससे बाहर निकलना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। आप इतने सैड हैं कि हर दिन सैड हो रहे हैं, आप खुश होना चाह रहे हैं, आप खुश हो ही नहीं पा रहे हैं, है ना। उस इतना एनालिसिस रखना जरूरी है। इतना एनालिसिस रखेंगे तो पहले ही स्टेप पर चीजों को पकड़ पाएंगे और अपने आप को ठीक रख पाएंगे, क्योंकि पहले तो काउंसलर्स की जरूरत नहीं होती थी, है ना। अब जरूरी नहीं है। काउंसलर की जरूरत अब इसलिए होगी है क्योंकि भाई अब आप इतना ही एक्सट्रीम में चले जाते हैं किसी एक इमोशंस के कि फिर वहां से निकलना ही पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट फिर ऐसा है तो आई विल
आस्क पीपल टू अप्रोच अ काउंसलर, काउंसलर की मदद लें उसमें। और मदद लेना कोई बुरा नहीं है, हम हमेशा से मदद लेते हैं चीज़ों के लिए, और एक दूसरे की मदद से ही पूरी दुनिया चल रही है। स्टार्टिंग में हमारे पेरेंट्स हमें मदद करते हैं, फिर हमारे टीचर हमें मदद करते हैं, फिर ऐसे हमारे दोस्त हमें मदद करते हैं। लाइफ ऐसे ही चल रही है ना, हेल्प लेने देने से। तो इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप हेल्प लेने जाते हैं, बल्कि ये बहुत समझदारी का स्टेप है, बहुत अच्छा कदम है अगर आप हेल्प लेते हैं तो। बिल्कुल, काफ़ी अच्छा जवाब था आपका, जो लव को लेकर और रिलेशनशिप को लेकर हमने सुना। तो ऐसे ही जो अगला 4th क्वेश्चन है, जो जैसे कि हमारे पास 5 क्वेश्चन आपके लिए वैसे आज 3 हम कवर कर चुके हैं, तो ऑडियंस को मैं बता दूं कि 2 क्वेश्चन और बचे हैं आपके लिए। 4था क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि हाउ टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पीस। ओके, तो मतलब बहुत छोटे टाइम में आप बड़ी बड़ी चीजों को समझना चाहते हैं शिवम दीक्षित। ओके, हालांकि ठीक है, बहुत सिंपल है, क्योंकि ये चीजें ना एक्सपीरियंशियल चीजें हैं, राइट। इन एक्सपीरियंशियल चीजों को समझना बहुत जरूरी है, ताकि ज्यादा हम अच्छे से बैलेंस होकर एक्सपीरियंस कर पाए। हाँ, और इसकी बात करते हैं, इसका एक रीजन और ये भी है इन वर्ड्स को समझना, मतलब स्पेशली फॉर माय ऑडियंस आई एम टेलिंग दिस, many a times we misunderstood these words, right, and when we misunderstood certain words, it is somehow affecting our mental status. This is what I personally feel. So इसलिए I am asking you these questions so that we can understand the real meaning of these words, and according to that we should start acting in our lives. right, एब्सोल्युटली, ये बिल्कुल हेल्प। देखो, इंफॉर्मेशन, नॉलेज कहो, नॉलेज बहुत हेल्प करती है आपको आपकी लाइफ को बैलेंस करने में। अगर ऐसा राइट इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो ये बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं कहता हूँ इनको ज़्यादा ज़रूरी है समझना। हम क्या होते हैं, अपनी ज़िंदगी में लगे रहते हैं स्किल हासिल करने में, या कोई बाहर की इंफॉर्मेशन हासिल करने में, कोई स्पेस के बारे में पढ़ रहा है, कोई लॉ के बारे में पढ़ रहा है, कोई टीचिंग के बारे में पढ़ रहा है। भाई सेल्फ के बारे में भी पढ़ना चाहिए, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप ही वो सारे प्रोफेशन में रोल प्ले करने वाले हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इन चीज़ों को समझा जाए, अंडरस्टैंड किया जाए। एग्जैक्टली। तो हम जान रहे थे कि पीस क्या है सर। ठीक है, पीस के बारे में हम बात करते हैं। अच्छा, इसे भी वैसे ही समझेंगे कि एक्सपीरियंस, जब आपने पीस को एक्सपीरियंस किया है तो हकीकत में होता क्या है, क्या आपने एनालाइज किया, क्या आपने क्या चेंजेस आपने अपने अंदर नोटिस करें जब आप पीस में होते हैं। आप मजे में, जब आप पीस में होते हैं तो आप मजे में होते हैं, लेकिन आप मजे में क्यों होते हैं, क्या ऐसा होता है आपके अंदर कि आप पीस में हैं। पीस भी कोई ऐसा नहीं कि लोग पीस में लेने की कोशिश कर रहे हैं, पीस में जाने की। पीस आप बहुत बार एक्सपीरियंस कर चुके हैं, दिन में कोई कितनी बार आप पीस एक्सपीरियंस करते होंगे। तो पीस को समझने के लिए जानना जरूरी है कि जब हम पीस में होते हैं तो हमारे जो माइंड है उसके अंदर जो थॉट्स हैं, माइंड का मेन काम है थॉट्स क्रिएट करना। जो थॉट्स हैं उनकी जो संख्या है, उनका जो नंबर है वो काफ़ी कम होता है, तो हम पीसफुल हैं। जैसे जैसे वो संख्या, थॉट्स, नंबर ऑफ थॉट्स बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, बढ़ रहे हैं, जितना ज़्यादा बढ़ रहे हैं, टर्बुलेंस, दिमाग में टर्बुलेंस आने स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। हम पीसफुल से अपोजिट जाना स्टार्ट करते हैं, हम अशांत होना स्टार्ट करते हैं, हम शांत नहीं हैं। तो जितने थॉट्स हमारे कम होंगे उतना ही हम शांति की तरफ बढ़ेंगे या पीस को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। नंबर ऑफ थॉट्स हमारे कम हैं तो हम पीसफुल हैं। अगर 1 मिनट में 3 से 4 या 10 से 15 थॉट्स, 15-20 तक थॉट्स भी हैं तो वी आर एट पीसफुल स्टेज। उससे ऊपर जाते हैं तो हम धीरे धीरे वो टर्बुलेंस या अशांत हम होना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो वो थॉट्स का, नंबर ऑफ थॉट्स के थ्रू ही हम उस पीस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ये चीज़ है। बाकी सारे जो इमोशंस हैं ये अभी आजकल कंडीशनल हैं, ये सिचुएशनल है। जैसे सिचुएशंस होती हैं, अच्छा वही कि हमने ये चाहा था, यही हो गया, तो हम पीसफुल हैं। तो हम वो नंबर ऑफ थॉट्स ना ऑटोमेटिकली कम कर देते हैं, ऑटोमेटिकली हो ही जाता है वो, क्योंकि हम ऑटोमेटिक मोड में चल रहे हैं अभी। बट ये हम कॉन्शियसली और डेलिबरेटली भी कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट पीस, वी कैन क्रिएट हैप्पीनेस, वी कैन क्रिएट लव। सो नंबर ऑफ थॉट्स कम होना ही पीसफुल स्टेट में जाना है।
Okay. So last question about this thing, and then I'll ask you one more question, like related to this piece, but I'll take this question in the end. So my next question is like, what is power? Power kya hai? There are a lot of people in today's world, they think they're very powerful, either muscular or mental, or because of wealth, or because of name. So there are a lot of people having different miscommunications, we can say, or different meanings of this word power. राइट. So according to you, what is this meaning of this word? ठीक है. एक चीज तो बहुत कॉमन है, जितने भी हमने पॉइंट्स पे अभी बात करी है, जैसे आप हैप्पीनेस के बारे में हमने बात करी है, पीस के बारे में बात करी है, लव के बारे में बात करी है, या अभी हम पावर के बारे में बात कर रहे हैं. ये ऐसी चीजें हैं जिनको हम ज्यादा से ज्यादा अपनी लाइफ में चाहते हैं. हम ज्यादा से ज्यादा खुश रहना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम पीसफुल स्टेज में रहना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम लव वाली स्टेज में रहना चाहते हैं, और ज्यादा से ज्यादा ही हम पावरफुल होना चाहते हैं. देखो पावर को लेके कितनी लड़ाइयाँ होती हैं. वो पावर कई बार वो पॉलिटिकल पावर होती है, कई बार वो मस्कुलर पावर होती है ना. तो बहुत सारी स्टेजेस में पावर है. या कई बार एग्जीक्यूशन की हमारी पावर होती है, कई बार हमारे बॉस के हाथ में काफ़ी पावर होती है. तो ये पावर क्या है? ये पावर, इस पावर को अगर हम समझे तो एक चीज़ बहुत कॉमन है इसमें, वो है कंट्रोल. कि जितना ज़्यादा हमारा कंट्रोल है उतना ही ज़्यादा हम पावरफुल हैं. इसे हम बाहर देखते हैं, अंदर देखने से पहले बाहर देखते हैं. दो तरीके की पावर है, दो तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. एक हमारे अंदर की पावर है, और एक बाहर जो हम पावरफुल दिखते हैं. जैसे मान लो देश का जो प्रधानमंत्री है वो पावरफुल हैं, राइट. वो पावरफुल, मतलब पावरफुल क्यों है? क्यों कह रहे हैं कि हम वो पावरफुल है? क्योंकि वो काफी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं, पूरे देश को कंट्रोल कर सकते हैं, एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं. तो जो जितना ज्यादा कंट्रोल कर सकता है, जिसकी जितने ज्यादा रीच है कंट्रोल करने के लिए, वो बाहर उतना ही ज्यादा पावरफुल है. ठीक है. अगर हम किसी एक IAS की बात करते हैं, एक DC की बात करते हैं, तो वो एक जिले में पावरफुल है, एक डिस्ट्रिक्ट में पावरफुल है, उसकी रीच वहां तक है. उससे भी ज्यादा पावरफुल एक मुख्यमंत्री की पावर होगी, राइट. वो एक स्टेट को कंट्रोल कर रहा है. उससे भी ज्यादा पावरफुल हम कहेंगे कि प्रधानमंत्री होते हैं, क्योंकि कंट्रोल बढ़ता जा रहा है. जितना ज्यादा कंट्रोल बढ़ेगा उतना ही ज्यादा हम पावरफुल हैं. अब ये तो पावर होगी बाहर. अब यहाँ पे हम साइकोलॉजिकल पावर की बात कर रहे हैं, अपने अंदर की पावर की बात कर रहे हैं. अपने अंदर की पावर भी सेम ही है कि कंट्रोल, हाउ मच यू कैन कंट्रोल योर थॉट्स एंड योर इमोशंस एंड योर बिहेवियर. ऐसा नहीं, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल क्या हो गया? आउट ऑफ कंट्रोल ये होगा कि कोई भी बिहेवियर है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान शराब पीता है, कोई इंसान कोई ड्रग लेता है, राइट. ये एक बिहेवियर है कि हम कोई इंसान ड्रग लेता है. अब वो उसने रिपीटेटिव इतना बार कर लिया है कि अब उसका ना कंट्रोल ही छूट गया उससे, कि वो छोड़ना चाहता है. आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशा करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि यार हम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ना वो पावर नहीं है. अभी वो पावर खो गई है. तो पावर क्या है कि आपका जितना ज्यादा कंट्रोल है अपने थॉट्स, अपने इमोशंस और अपने बिहेवियर पे, उतने ही आप पावरफुल हैं. ठीक है. तो इस पावर की बात, इस कंट्रोल की हम यहाँ बात करते हैं. तो हमने दोनों को देखा, हमने बाहर की कंट्रोल को भी देखा, अंदर के कंट्रोल को भी देखा. तो हम यहाँ इंटरनल कंट्रोल की बात कर रहे हैं. तो आप पावरफुल हैं. अगर आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, यू आर पावरफुल. आप अपने थॉट्स को मैनेज कर सकते हैं, इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं, यू आर पावरफुल. अपने बिहेवियर को मैनेज कर सकते हैं, यू आर पावरफुल. मैनेज अकॉर्डिंग टू यू, या कंट्रोल, द मेन वर्ड इज द कंट्रोल. ये पावर है. तो हाँ, बहुत मतलब समझ गया मैं ये चीज़ तो, कि पावर जैसे आपने बताया कि मतलब फिजिकल पावर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी इंटरनल जो पावर की जैसे आपने बात करी, कि जितना हमारा कंट्रोल होगा चीज़ों पे उतने ज़्यादा हम पावरफुल होंगे. अपने इमोशंस पे आपने कहा, अपनी फीलिंग्स पे, अपने थॉट्स पे आपने कहा. हाँ जी. तो अब जैसे कि मैं बता रहा था कि मुझे आपसे पूछना, जैसे पीस की हम बात कर रहे हैं, या पावर की हम बात कर रहे हैं, सेल्फ कंट्रोल की, हैप्पीनेस की. तो कई लोग सोचते हैं कि बस आंख बंद करके बैठ जाना, मेडिटेशन करना, और उससे सारी चीज़ें आ जाएंगी, या काउंसलिंग की पढ़ाई कर लेना, या साइकोलॉजी की किताबें पढ़ लेना, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख लेना. तो क्या आपको लगता है कि ये
चीज से हम इन सब चीजों में मास्टरी कर सकते हैं, पीस में, हैप्पीनेस में, या इसके लिए कुछ एक ऐसा फॉर्मूला मैं चाहूंगा आप हमारे ऑडियंस को बताएं जो कि वो यूज करें और उनको इससे एक हेल्प मिल सके? ठीक है शिवम, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। कुछ लोग मेडिटेशन करने के लिए जा रहे हैं, कई बार फेल हो जाते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, बहुत बार कामयाब हो जाते हैं। हमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है, उस इंफॉर्मेशन को देखो, यूट्यूब की वीडियोस देखने से क्या हो रहा है, वीडियोस देखने से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। जब वो इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो उस इंफॉर्मेशन का हम थॉट क्रिएट करते हैं अपने अंदर। जैसे ही हम थॉट क्रिएट करते हैं तो एक एनर्जी, एक इमोशन का फ्लो होता है हमारी बॉडी के अंदर, या फिर हम ये कहो जैसा हम सोचते हैं हम ऐसा ही फील करना स्टार्ट कर देते हैं, तो फीलिंग चेंज हो जाती है, राइट। या फिर हम अपने आप को लेकिन ये टेम्परेरी है, राइट। हो सकता है कि हमें बार बार वीडियोस देखने की ज़रूरत पड़े, या अगर हम मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं तो मेडिटेशन में भी हम क्या कर रहे हैं, अपने थॉट्स को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेडिटेशन में भी मेन यही कर रहे हैं कि पहले हम अपने थॉट्स को देखते हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन को ले लीजिए, हम अपने थॉट्स को देख रहे हैं, अपने इमोशंस को देख रहे हैं, हम बॉडी स्कैन कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे हम अटेंशन पे करना स्टार्ट करते हैं अपने आप पे, तो हमारे थॉट्स कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। जितना थॉट्स कम होना स्टार्ट होते हैं, हम पीसफुल स्टेज में आ जाते हैं, हम पीस एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो अब है क्या कि इंफॉर्मेशन भी देखो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंफॉर्मेशन से काम तो हो रहा है। अगर आपने यूट्यूब की वीडियो देख के आप मोटिवेट हो गए, या फिर आपने शांति अपने अंदर महसूस कर ली कुछ, तो इसका मतलब इंफॉर्मेशन का इफेक्ट तो है। अब इंफॉर्मेशन के इफेक्ट को अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, जैसे मान लो अभी भी हमने इतनी सारी बात करी है, एक इंफॉर्मेशन भी पे हम बात कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन जा रही है, राइट। तो इस इंफॉर्मेशन को कंटिन्यूसली यूज करना जरूरी है, इस इंफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस में लाना जरूरी है। कंटिन्यूसली यूज करने का मतलब मैं एक्सपीरियंस की बात करूंगा। जब आप किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस में लेके आते हैं तो आप जान पाते हैं, तो कुछ चेंजेस आपके अंदर हो पाते हैं, राइट। तो वो जो एडवाइस आपकी आप बात कर रहे हैं, मेरी तरफ से यही हुआ कि आप लगातार डेली एक अपने साथ का टाइम फिक्स कर लें, जिसमें सिर्फ आप अपने आप को देखेंगे और कुछ नहीं। सिर्फ बैठ के देखना है कि आप सोच क्या रहे हैं, या आपकी बॉडी में अगर कोई पेन है या बिल्कुल रिलैक्स है तो क्या है वो रिलैक्स स्टेज, राइट। मतलब अपने आप को एकदम एनालाइज करना है। कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए आप देखिए, एक हफ्ते में आपको फर्क दिखेगा कि आप कितने कंट्रोल में आ गए हैं।